If you have any problem, so you can discuss. Actually, in the previous lecture, we have discussed these points. Or not from the previous lecture, continuously we are discussing on these points actually. What is the Python libraries? And we have seen what is module, how we create the module, and how we place the functions inside the module. And also we have seen how to import the created module in your Python programs and how we access the functions of the created modules in our program. These are all the things we have already seen and we are working on this. It's my personal suggestion to all of you. You just watch my previous videos if you have any doubt and your concept is low somewhere. Today, basically, we are discussing some questions. Just a moment. We are discussing some questions and this is the question list. This is the list. I have given some questions for the practice purpose. Okay, these are the modules I have given and most of the modules I have already created in the online classes. So someone is asking that the question number 7 we should discuss in the class. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay, fine. So question number 7 means, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि it's my assumptions that you have done the 5 and 6. ये क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं क्या? अगर ये कर लिए, वैसे इसका कोई रिलेशन नहीं है प्रीवियस मॉड्यूल से. ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये जो हम लोग आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉट इज वी आर डूइंग द प्रैक्टिस, इससे हमारी कई चीजें क्लियर हो रही हैं. नंबर 1, हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्लियर हो रहे हैं. कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब होता है इफ कंडीशंस, व्हाइल लूप, फॉर लूप, फॉरेन लूप. ये हमारा क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे फंक्शंस रिवाइज हो रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस. थर्ड, मॉड्यूल क्रिएशन हमारा रिवाइज हो रहा है. फोर्थ, हाउ टू इंपोर्ट द मॉड्यूल एंड स्पेसिफाइड फंक्शंस. No problem. So without further delay, I want to start this program. Okay. In 20 minutes, I will try to complete this program because after that, your next class is scheduled. Okay, no problem. So let's get started. As you know that we have already created one directory inside the D drive folder, Python programs. This is the Python programs. And inside this folder, I have also created the user defined module. Understand? In the user defined modules, I am creating my own modules and we are calling. So today I am going to work on which module? Actually the create the module with the name of threes. इस module का नाम threes है. So no problem. First of all, I want to create a module. Module is nothing but just a Python file. जैसे हम नॉर्मल अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं और कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमारा मॉड्यूल भी एक पाइथन की फाइल है. तो उसके लिए कुछ हमें स्पेशल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करनी पड़ती हैं. जस्ट राइट क्लिक एंड क्रिएट अ फाइल. अब इस फाइल का नाम हम वही रखेंगे जो हमारे मॉड्यूल का नाम है. तो I've already copied, pasting, and the txt extension should be replaced with py because py is the extension of Python files. Okay, I'm extremely little bit sorry from my side. Actually, there are little inconvenience. Some voice is coming, some construction work is going on, but we can manage. Okay, so this is basically my module, and I don't want to work on the previous modules. I am just closing. Okay, fine. So this is my fresh file, my fresh module. Okay, now अब इस मॉड्यूल के अंदर हमें करना क्या होता है? जनरली मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग फंक्शंस क्रिएट करते हैं.
और उन फंक्शन की डिटेल हमें क्वेश्चन में दी जाती है कि हमें कौन कौन से फंक्शंस डेवलप करने हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल में एक बेटर प्रैक्टिस ये होती है कि हम एक साथ सारे फंक्शंस क्रिएट ना करें, एक एक फंक्शन को क्रिएट करके टेस्ट करते रहें ताकि हमें एरर्स का आइडिया होता रहे। और अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप सारे फंक्शन एक साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन जो है इसमें है 5 होने की सीरीज। इसको हम थोड़ा सा बाद में लेते हैं, ठीक है। पहले हम ये फंक्शन क्रिएट करते हैं, थोड़ा इजी फंक्शन क्रिएट करते हैं। 5 होने की सीरीज हम बाद में लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं सम सीरीज। सम सीरीज हमारा एक फंक्शन है जो कि n एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है और जो n पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग ये सम जनरेट करेगा। तो 1 सेकेंड प्लीज। f सम सीरीज एंड n इज अ वेरिएबल। अगर n की वैल्यू मान लीजिए 5 है तो हमें 1 से लेकर के 5 तक सारे नंबर्स का सम करना है। दिस इज एग्जैक्टली माय फंक्शन। जो भी हम पास करेंगे n में, मान लो n में वैल्यू 5 है तो 1 से लेकर के 5 तक सारे नंबर्स का सम होगा। तो 5 4 9 और 1 10 और 5 15। दिस फंक्शन विल रिटर्न द 15। अब रिटर्न के लिए फंक्शन में कहा गया है नहीं, हम देख लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, जनरेट द सीरीज एंड रिटर्न के लिए कहा नहीं गया है इसमें, ठीक है। आप चाहें तो एक एडिशनल पार्ट यहां पर ऐड कर सकते हैं, रिटर्न द सम। अंडरस्टैंड? यानी कि पूरा सम कैलकुलेट होने के बाद जो n है उसके अकॉर्डिंग पूरी सीरीज का सम कैलकुलेट होने के बाद यू हैव टू रिटर्न द सम बैक। ओके फाइन। तो अब ये ज्यादा बेटर हो गया क्वेश्चन। ओके, रिटर्न वाले फंक्शन ज्यादा बेटर होते हैं। ओके, नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। So it's not a very tough question actually. Sum is equal to 0 and for I in range 1 comma n plus 1. That's it. And sum is equal to sum plus I. This is done and simply we are returning. अभी तो हम basically for के बाहर हैं तो हम यहां से रिटर्न कर सकते हैं sum. My first function is created. My first function is created. Understand? Please look at the screen. Okay, I will surely do the dry run. Okay, मैं dry run कर रहा हूं इसका, just a moment. Okay, see, n की वैल्यू हमने एज्यूम करी है कि यूजर ने सपोज n की वैल्यू 4 पास की। कुछ भी पास कर सकता है यूजर, ड्राई रन के लिए हमको कुछ वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ती है। अब अगर 4 पास किया तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 1 + 2 + 3 + 4, दैट इज 4 + 3 7 8 9 एंड 10। 10 रिटर्न होना चाहिए। अब ये लूप किस तरह से चलेगा? 1 n + 1, तो n is 4, तो 4 + 1 ये 5 तक हमने इसको प्लान किया। आप जानते हैं कि जो इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं उसमें ये इंक्लूसिव होता है तो ये एक्सक्लूसिव होता है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब कि जनरल जो हमारी रेंज बनेगी वो 1 से लेकर के 4 तक बनेगी, जस्ट लाइक दैट। अंडरस्टैंड? 5 इसमें एक्सक्लूडेड होगा। तो सबसे पहले आई में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? सबसे पहले आई में हमारे पास आएगा 1 आएगा सर। वेरी गुड। और सम की वैल्यू हमारी इनिशियली 0 है। पाइथन नहीं, इट्स नॉट ओनली इन द पाइथन, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे कमांड हो जाए, आपके फॉर किस तरह से वर्क करते हैं, इफ किस तरह से वर्क करता है, रेंज किस तरह से है और उसके बाद लिस्ट है, तो आगे की चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती हैं। तो सम इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो 0 + 1 विल बी एडेड इन द सम। नाउ इसके बाद अब i में नेक्स्ट वैल्यू आएगी, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द i? i is 2। तो अब i में जब 2 आया तो that 2 will be stored in i। ओके,
तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम इज 1, तो 1 प्लस 2 3। अब नेक्स्ट जब हम फॉर आई इन रेंज कर रहे हैं तो आई में एक और आगे की वैल्यू आएगी, नेक्स्ट वैल्यू, सो दैट वैल्यू विल बी 3 एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम में 3 है, 3 प्लस 3 6 विल बी एडेड इन द सम। नाउ फॉर आई इन रेंज, सो द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द आई विल बी 4, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई एंड 6, सम में ऑलरेडी 6 है, तो 6 में ये i ऐड हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 हाउ मच, नाउ द फाइनल वैल्यू ऑफ द सम विल बी। अब जब i की वैल्यू 5 होगी तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसे 1 से 4 तक ही चलना था, 5 के लिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इस सम को हम यहां से रिटर्न कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। अब रिटर्निंग का प्रोसीजर आपकी समझ में तब आएगा जब इस फंक्शन को हम कहीं से कॉल करेंगे, क्योंकि वैल्यू रिटर्न होके वहीं जाती है जहां से हम इसे कॉल करते हैं, अंडरस्टैंड। कैन यू प्लीज कंफर्म कि इतना पार्ट आपकी समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अगर मान लो हम यहां पर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई की जगह पर ये स्टेटमेंट लिखते, सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई आई, तो हमारा रिजल्ट क्या रिटर्न होता? डू यू हैव एनी आइडिया? और n की वैल्यू हमने 4 ही एज्यूम करी है इस मॉडिफिकेशन के लिए। कैन यू प्लीज टेल आउटपुट मल्टीप्लाई क्या आंसर आएगा? व्हाट आंसर विल रिटर्न दिस फंक्शन? डू यू हैव एनी आइडिया? दिस फंक्शन विल रिटर्न द 0, yes or no? Yes or no? यस सर। यस सर। Why? Why? सर मुझे समझ नहीं आया। Because सम की वैल्यू 0 है। and 0 multiplied with any number will return 0. 0 सर। Understand? तो आउटपुट Yes, आपके sir. तभी स्ट्रांग हो सकते हैं जब आपकी प्रोग्रामिंग थोड़ा मीडियम लेवल पे आए। तो आपको हर क्वेश्चन का आउटपुट गेस करके चलना है। तो यहां पर सम की वैल्यू अगर हम 1 कर लेते हैं तो अब इमीडिएटली आपके माइंड में आना चाहिए कि सर अब n की वैल्यू अगर 4 है तो हमारा आंसर 24 रिटर्न होगा। से यस और नो? यस सर। यस सर। वैल्यू 4 है तो हमारा कैलकुलेशन इस तरह से होगा, होगा या नहीं? अंडरस्टैंड? यस सर। अभी प्लस के केस में हमारा कैलकुलेशन इस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। आंसर कितना आया था? और आप देख लीजिए कि अभी भी आपके सम में 10 है जो हमने ड्राई रन किया था। तो अंडरस्टैंड? तो प्रोग्राम को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखना सीखिए, सिर्फ एक तरह से नहीं, ठीक है, अलग अलग तरह से इसको, कि अगर यहां पर ये चेंज कर दे तो क्या आउटपुट आएगा, अगर यहां पर ये चेंज कर दे तो क्या आउटपुट आएगा। ओके, सो डन। सो अभी हम इस स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं और इस फंक्शन को कॉल करके टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सारे फंक्शन बन जाएंगे। क्लियर? एक बार सारा काम करने के बाद ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आपको यू हैव टू सेव। तो आई एम जस्ट सेविंग, सेव ऑल। ओके, नाउ मिनिमाइज। अब इसको कॉल करने के लिए वी हैव टू क्रिएट वन मोर फाइल। ओके, और इसका नाम हमने रखा है कॉलिंग, CALLING, कॉलिंग सीरीज। नाम थोड़ा सा मिलते जुलते और मीनिंगफुल होने चाहिए। कॉलिंग सीरीज का मतलब है कि हम सीरीज मॉड्यूल को इसमें कॉल करेंगे, कुछ एक रिलेशन बन रहा है। ओके, नाउ कॉलिंग सीरीज को हमने ओपन करा। तो अगर आप किसी मॉड्यूल के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू यूज एनी फंक्शन ऑफ द मॉड्यूल, एक्चुअली इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल में मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं। कभी भी आपके मॉड्यूल यूज नहीं होते, मॉड्यूल नेवर यूज, वी ऑलवेज यूज
the functions which is created inside module. Understand? It's again a very important point. We never use the module. हम कभी मैथ को यूज नहीं करते हैं, हम मैथ के अंडर में आने वाले फंक्शंस को यूज करते हैं, लाइक math.pow, math.sqrt, math.gcd, math.floor, something like that. So we never use the module, we use the functions inside the module. Okay, this point is clear. But import हम करते हैं मॉड्यूल को, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर ही फंक्शंस हैं. अगर मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया तो वी कैन रीच टुवर्ड्स द फंक्शंस. अगर हमने कैथीड्रल में एडमिशन ले लिया है तो हम कैथीड्रल के किसी भी क्लास तक पहुंच सकते हैं, लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं, प्लेग्राउंड तक पहुंच सकते हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच सकते हैं. हम अप्रोचेबल हो जाएंगे हर एरिया में पहुंचने के लिए. ओके, नाउ हाउ टू इंपोर्ट द मॉड्यूल. इंपोर्ट, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ मॉड्यूल? Trees. SERIES, trees. फाइन. अब यहां पर हमें एक नंबर इनपुट करना है यूजर से, तो num इज इक्वल टू int इनपुट. ये वो लिमिट है जिसके अकॉर्डिंग हमारी सीरीज जनरेट होगी, और सॉरी सीरीज का सम जनरेट होगा. इंटर लिमिट. अंडरस्टैंड? नाउ num हमारे पास आ गया है. अब num हमारे पास आ गया है, नाउ वी हैव टू कॉल द फंक्शन. तो कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे हम? सम सीरीज फंक्शन. तो कॉलिंग के लिए हमें क्या लिखना होगा? कैन यू प्लीज टेल? क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? सम सीरीज में एस कैपिटल है क्या? नहीं, स्मॉल है दोनों. सम सीरीज. अंडरस्टैंड? एंड वी आर पासिंग देम. सर कैन वी राइट लाइक दैट? आई एम जस्ट आस्किंग. प्रॉब्लम थी. क्या था? सर प्रॉब्लम है सर, जब भी सबलाइन में न्यू फाइल खोलता हूँ तो वो एज अ प्लेन टेक्स्ट खुलती है, वो सिंटैक्स पाइथन में नहीं आता है, हम बार बार चेंज करना पड़ता है. हाँ, चेंज तो हमें भी करना पड़ता है. हम txt को py करते हैं कि नहीं करते हैं? ओके, अच्छा, जब तुम डबल क्लिक करके ओपन करते हो तो सबलाइन में नहीं ओपन होती, ऐसा होता है ना? यस. नहीं, वो नहीं, वैसे तो ओपन होती है सबलाइन में, पर वो प्लेन टेक्स्ट के सिंटैक्स में होती है. तो py एक्सटेंशन देना जरूरी है, मैंने बताया था. जब तक py एक्सटेंशन नहीं होगा तब तक कि आपकी फाइल पाइथन के सिंटैक्सेस के साथ कंपैटिबल नहीं होगी. अगर आप चाहते हैं कि पाइथन के सिंटैक्सेस हमारी फाइल में इंटीग्रेट हो, इनकॉर्पोरेट हो, कंपैटिबल हो, तो इसके लिए py एक्सटेंशन देना जरूरी है. क्लियर? किसी टाइम पर जब हम फ्री हो तो तुम हमें कॉल करना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है? अच्छा, अब हम यहां पर आते हैं. ठीक है, सॉरी, कॉलिंग सीरीज में. तो क्या ये सिंटैक्स ठीक है? आई एम आस्किंग, आई एम जस्ट आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, क्या ये सिंटैक्स हमारा ठीक है? आप सोचिए, मैं बस एक सेकेंड में आ रहा हूं. So is it right or wrong? Is it right or wrong? It's absolutely wrong. We are calling the direct function. तो फंक्शन कभी भी डायरेक्टली कॉल नहीं होता, हमें इसके साथ मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा. ओके, अब ठीक है? सर लेकिन फंक्शन तो रिटर्न कर रहा है ना, तो कोई तो वही तो मैं क्वेश्चन सबसे पुट अप कर रहा हूँ ना. मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ. मैंने इंटेंशनली, मैंने बिल्कुल अगर ठीक ठीक सिंटैक्स लिख दूंगा तो आप लोग सीखेंगे कैसे? तो इसीलिए मैंने कुछ मिसिंग सिंटैक्स लिखे हैं. अब आप बताइए हमें किसमें क्या मिस्टेक. कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे एरर आएगी क्या? C. मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट, इसको मैं सेव कर लेता हूँ. अब सेव करने के लिए हम इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर हम सबलाइन में प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, तो अगर सबलाइन में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सबलाइन एक एडिटर होता है. इट्स अ एडिटर, इसको हम लोग एडिटर बोलते हैं. तो इसको रन करने के लिए, अगर इस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो उसके लिए हमको डॉस प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? यहां से रन नहीं हो सकता. देयर इज नो एनी कमांड और बटन और ऑप्शन इज देयर टू रन. तो उसके लिए
CMD। अब हमारी फाइल कहां है? ओके, हमारी फाइल कहां है? मान लीजिए कि अगर आपका टीवी, सपोज दिस इज अ टीवी, टेलीविजन, ये टेलीविजन आपका ड्राइंग रूम में है। ओके, तो इस टीवी पर अगर आपको कोई प्रोग्राम वॉच करना है तो आपको ड्राइंग रूम में आना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ये आपका जो टीवी माउंटेड है वो आपका ड्राइंग रूम में माउंटेड है। तो फंक्शन जिसको आप कॉल करने जा रहे हैं या जो पाइथन की फाइल आप कॉल करने जा रहे हैं वो कहां है? आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। तो पहुंचने को हम लोग कहते हैं पाथ। तो हमारा पाथ बेसिकली क्या है? जस्ट अ मोमेंट। ओके, आज मैं थोड़ा सा आपको ये चीज थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखिए पाथ हमेशा देखिए ऊपर आता है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं दिखाता हूँ, मैग्नीफाई, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये पाथ है, ये जो ऊपर आ रहा है ये पाथ है तुम्हारी जो कॉलिंग सीरीज बनी हुई है। 1 मिनट, आई जस्ट वांट टू टेक अ पॉइंटर। सी, अब देखो ये ऊपर का जो तुम्हारा पाथ है, ये मतलब अगर तुमको कॉलिंग सीरीज तक पहुंचना है, अगर तुम्हें कॉलिंग सीरीज तक पहुंचना है, ये तो कॉलिंग सीरीज तुम्हारी जो है वो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल के अंदर है, और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल इटसेल्फ कमिंग अंडर द पाइथन प्रोग्राम, एंड द पाइथन प्रोग्राम इज क्रिएटेड इन द डी ड्राइव। सो दिस इज एग्जैक्टली योर पाथ। तो जब तक तुम यहां तक नहीं पहुंचोगे तब तक तुम इसको टच नहीं कर सकते। तो दिस इज योर पाथ। अब अगर तुमने मेरे वीडियोस को और मेरे स्टाइल के साथ चल रहे हो तो तुम्हारा हमारा पाथ सेम होगा, लेकिन सम टाइम अगर तुम्हारा कोई डिफरेंट पाथ है तो तुम्हें डिफरेंट पाथ को फॉलो करना होगा। अंडरस्टैंड? तो अब हम यहां तक पहले पहुंचते हैं। तो यहां तक पहुंचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम हैं यहां पर सी ड्राइव में, बट हमारा जो पाथ है वो डी ड्राइव में है। तो ड्राइव चेंज करने के लिए हम डी कोलन देते हैं। नाउ द ड्राइव इज चेंज। अब हम इसको थोड़ा ऊपर कर लें ताकि आप मैच कर लें। अब सबसे पहले हमें पाइथन प्रोग्राम्स में आना है, एंड पाइथन प्रोग्राम इज अ डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी में एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं cd एंड पाइथन, pyth लिख दो एंड टैब प्रेस करो। तो दिस इज योर पाइथन प्रोग्राम्स। तो हम यहां तक आ गए। अब इसके बाद है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, इट्स अनदर न्यू डायरेक्टरी। तो वी हैव टू एंटर इन दिस डायरेक्टरी आल्सो, तो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, राइट। अब हम यूजर डिफाइंड मॉड्यूल के अंदर भी आ गए। अब अंदर आने के बाद हम कॉलिंग सीरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा इसका मैग्नीफाई डाउन कर रहे हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। वन सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। नो, इट्स फाइन, 1 मिनट। सी, तो अब हम यहां पर आ गए। अब इसके अंदर हमें कौन सी फाइल हमें एग्जीक्यूट करनी? वो फाइल एग्जीक्यूट करनी है जो हमारे मॉड्यूल को यूज कर रही है, दैट इज अ कॉलिंग सीरीज। सो पाइथन भी हम लिख सकते हैं और py भी लिख सकते हैं। कॉलिंग सीरीज, आई हैव गिवन द 4। तो व्हाट आउटपुट शुड कम? हमने 4 पे भी ड्राई रन करा, प्लीज बी एक्टिव। क्या आउटपुट आएगा हमारा? 10 आउटपुट आएगा। 1 + 2 + 3 + 4 अभी ड्राई रन हुआ है, सब में 10 आया था। Yes, sir. बट आउटपुट इज नॉट कमिंग यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आउटपुट इज नॉट कमिंग। अगर आप ये समझ गए कि आउटपुट क्यों नहीं आ रहा तो आप फंक्शन समझ गए, आई टेक गारंटी। आउटपुट इसलिए नहीं आया है क्योंकि फंक्शन तो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। फंक्शन तो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। दिस इज अ फंक्शन and function is returning the result, but you are not receiving. Nobody is here to receive the result. मतलब मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं but you are not accepting, you are not receiving, you are not taking from me. तो वो चीज हमारे पास ही रह जाएगी, आप तक नहीं पहुंचेगी। होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां पर देखो आराम से, फिर मुझे बताना कि तुम्हारी समझ में आया या नहीं। देखो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है सम, बट कॉलिंग सीरीज इज नॉट एक्सेप्टिंग द सम।
आप यहां पर सम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको यू हैव टू टेक अनदर वेरिएबल s। अब यहां पर आप लिखेंगे प्रिंट टोटल सम। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो s, अब ये s क्या है? ये s वो वेरिएबल है जो कि इस रिजल्ट को रिसीव करेगा, मतलब इस सम को रिसीव करेगा। दिस सम विल बी कॉपीड और ट्रांसफर और रिसीव्ड इनसाइड s, एंड वी आर सिंपली प्रिंटिंग द s। अब अगर हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे, देन डेफिनेटली वी विल गेट द रिजल्ट। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, सी अब हमने यहां पर 4 दिया, तो 100% वी विल गेट द 10 आंसर। आर यू ऑल गेटिंग और नॉट? Yes, एक बार sir. कोड दिखा दीजिए फिर से। यस सर। ओके, दिस इज द कोड एक्चुअली। ये कॉलिंग का कोड है, और इस कोड पर तो हम काफी देर तक रहे थे। ये हमारा एक फंक्शन, कॉलिंग कोड चाहिए, कॉलिंग कोड। और ये तुम्हारा कॉलिंग कोड है, ठीक है सर मैं रन कर रहा हूँ, 1 मिनट बस। रन, इसको देख लो आराम से। हाँ, बाकी लोग जो हैं लाइक अर्पिता, अंशिका, इन सबको अगर कोई प्रॉब्लम हो, या जानवी इज ऑल्सो देयर, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू जस्ट आस्क, ओके, यू कैन आस्क, अंडरस्टैंड? If it is clear, then we can move to the next question, next function, I mean to say that. 1 मिनट। तो जब भी कोई फंक्शन रिजल्ट को रिटर्न करता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रिजल्ट को ये सर रन हो गया। होगा, सबका रन होगा अगर आप सही सिंटैक्सेस को फॉलो करें, अंडरस्टैंड? और अगर एक प्रोग्राम रन हो गया तो फिर सब हो जाएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज सेम। वेरी रन हो गया, मैं कर रहा था साथ ही में आपके, हो गया मेरा। very good, excellent. Now, do you have any problem? Please, Satvik, are you there? Do you have any problem in this function? Mahima, do you have any problem? No, sir. ठीक है, हम भी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें भी प्रॉब्लम होगी, जबकि हम काफी प्रोग्राम देख चुके हैं। इसी तरह से आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। बहुत प्रैक्टिस मांगती है प्रोग्रामिंग, ओके? चलिए, अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज पावर सीरीज। पावर का मतलब तो आप जानते हैं, पावर के लिए पाइथन ने क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी हैं। इफ यू टॉक अबाउट द पावर, तो पावर के लिए पाइथन ने 2 फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी हैं। आइदर यू कैन यूज द फंक्शन POW which comes under the math module, or you can use the exponential operator, if I am not wrong. Yes or no? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर से भी आप पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आप मैथ मॉड्यूल का POW फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, sir. ओके, अगर आपको डाउट हो तो हम इस चीज को जरा सा बता देते हैं, बहुत 1 सेकंड लगेगा बस, नॉट मोर देन दैट। सी 2 *3, so it will produce the 8. Okay, understand? और आप मैथ फंक्शन को इंपोर्ट करके math.pow करके भी सेम आंसर अचीव कर सकते हैं। बट डिफरेंस ये है कि जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है वो आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और जो आपका math.pow फंक्शन है वो आपको फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। बस ये डिफरेंस, ओके? और कोई बात नहीं, ठीक है? ये भी एक क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड POW। नाउ आई एम कमिंग टू द फंक्शन। इस फंक्शन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो पावर सीरीज को हमने कॉपी कर लिया ताकि हम चाहते हैं नेम्स में प्रॉब्लम है। तो फंक्शन अब हम यहां क्रिएट करेंगे या कहां क्रिएट करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। यहां क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन? बोलो भैया, कैन यू प्लीज आंसर? यहां क्रिएट कर लें? Yes, sir. नहीं, No, sir. यहां क्रिएट नहीं होगा फंक्शन, यहां क्रिएट Sir, जो फंक्शन यहाँ क्रिएट होगा। कॉलिंग Yes. सेक्शन है ना, यहां क्रिएट, Yes, sir. तो फंक्शन सारे यही होंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी का मतलब है सारे फंक्शन एक जगह पे हैं, बस उनको कॉल आप वहां से कर रहे हैं,
ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. 1 second please. Jeff, and just I want to remove all these things. Okay, power series and n, because n is a parameter, no problem. एक चीज और, ये n और ये n आपस में रिलेटेड नहीं है. ये n इस फंक्शन का पैरामीटर है और ये n इस फंक्शन का पैरामीटर है. नेवर कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, अब इस पूरे का कैलकुलेशन भी हमको करना है. देखो प्लस प्लस साइन बीच में लगे हुए हैं, तो हमने यहां पर एक सम ले लिया. अंडरस्टैंड? अब इस पूरी सीरीज को हमें कैलकुलेट करना है. तो पावर की अगर हम बात करें तो पावर में दो चीजें होती हैं. एक होता है बेस और एक होता है एक्सपोनेंशियल. एक होता है बेस, एक होता है एक्सपोनेंशियल, या एक होता है बेस, एक होता है पावर. तो यहां पर जो बेस है वही उसकी पावर है. 1 to the power 1, 2 to the power 2, 3 to the power 3. The base and power is absolutely same. No problem. ठीक है, कहां तक जा रही है मैं सीरीज? हमारी सीरीज n तक जा रही है. तो n का मतलब ये है कि हमें लूप फ्रेम करना पड़ेगा 1, n+1. अंडरस्टैंड? नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस i मल्टीप्लाई i. दैट्स इट. इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में ले लें, तो इट विल इंक्रीज द रीडेबिलिटी. ओके, मेरा प्रोग्राम ये भी बन गया. अब आप चाहें तो इसको रिटर्न करा लें और चाहे हम यहां पर भी प्रिंट करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो चलो इस फंक्शन में हम यही प्रिंट कराते हैं. हम इसको रिटर्नेबल नहीं बना रहे, ये हमारा रिटर्नेबल बना हुआ है. इसको हम नॉन रिटर्नेबल मोड पे ले लेते हैं. तो नॉन रिटर्नेबल मोड पे लेने के लिए हमको रिजल्ट यहां पे डिस्प्ले करना होगा. सम ऑफ पावर सीरीज, okay, and comma sum. This function is also created. Okay, अब इसे हम कॉल करके चेक कर लेते हैं. पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ताकि हमारा आंसर मैच हो जाए. तो रिजल्ट के लिए हम लोग इतना पोर्शन टेस्ट कर लेते हैं यहां तक. तो जस्ट अ मोमेंट प्लीज, 1 second. Here I am taking okay, one minute. ओके, सी, अगर हम इतना पोर्शन टेस्ट करते हैं इसका, तो 1 की पावर 1 कितना होगा? 1. 2 की पावर 2 कितना होगा? 4. और 3 की पावर 3 कितना होगा? कितना होगा? 9. 27. और 4 की पावर 4 कितना होगा? ठीक है, तो 4 की पावर 4 मतलब 4 4 द 16, 4 द, ऐसे करके हमको 4 तक जाना होगा. तो हम अभी चेकिंग पर्पस के लिए इतना रखते हैं. तो अगर हम 3 वैल्यू देते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए 27 + 1 28. 28 + 4 इज इक्वल टू 32. 32. अगर 32 आंसर हमको मिल जाता है n की वैल्यू 3 पे, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है. तो पहले हम इसको रन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको ड्राई रन करके समझा देंगे. तो दिस फंक्शन ऑलरेडी डन, और ये फंक्शन भी हमारा हो गया है. ओके, इसके बाद ये फैक्टोरियल है, और ये फैक्टोरियल और पावर दोनों को हमने इसमें यूज करा है. सो इट्स अगेन इम्पॉर्टेंट. ओके, अब देखो इसको रन करने के लिए, and the meeting will be over in the 5 or 10 minutes actually. Just a moment. Okay. See. Okay, fine. So just I'm going. Okay, let me save actually first of all. तो सेव कर लेते हैं. सेव तो कर लिया, लेकिन अभी ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है. तो कॉल करने के लिए हमें फिर से सीरीज मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा. करना होगा या नहीं? यस सर, यस सर. ऑलरेडी इंपोर्ट ना, आप क्यों करेंगे दोबारा? ऑलरेडी No, sir. दोबारा इंपोर्ट नहीं करेंगे. तो तुम कह रहे थे ना करेंगे बेटा. ठीक है, अब यहाँ देखो, नहीं नम हम ऑलरेडी इनपुट करा चुके हैं. यही नम हमारा यूटिलाइज हो जाएगा सेकंड सीरीज के लिए. ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं S2. S2 मीन्स द अनदर सम. सीरीज डॉट, अब कौन सा फंक्शन कॉल करना है? सीरीज मॉड्यूल का. सीरीज इज द मॉड्यूल. तो सीरीज मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन हमें कॉल करना है? हमें कॉल करना है पावर सीरीज. तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया, और पावर सीरीज में हम पास करेंगे नम को. अंडरस्टैंड?
अब यहां पर हमको रिजल्ट रिटर्न तो वो कर नहीं रहा है, तो हमको इस S2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। S2 की रिक्वायरमेंट या S की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब आपका फंक्शन रिटर्नेबल हो और वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। तो हमने पावर सीरीज को नॉन रिटर्नेबल बनाया है और हम रिजल्ट यहां रिटर्न कर रहे हैं, यहां से रिजल्ट हमारा रिटर्न बैक नहीं हो रहा है, तो हमें उसे रिसीव करने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब हमने इसको सेव ऑल कर लिया। अब सेव ऑल करने के बाद में इसे हम रन कर रहे हैं। तो रन करने के लिए आई हैव गिवन द 3। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? हमने अभी थोड़ी sir. देर पहले 32 कैलकुलेट किया था आपके लिए, याद है ना? यस सर। आप अपनी sir. कॉपी और पेन साथ में रखा करिए, इट्स माय पर्सनल सजेशन। कौन सी चीज हम कहाँ लिखते हैं, क्या डिस्कशन होता है, वो आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं इमीडिएटली, तो यू मस्ट हैव योर कॉपी एंड पेन और पेपर पेंसिल। ओके, यस सर। चलिए यहाँ आइए, देखिए अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है 32। ठीक है, 32 हुआ है और यही 32 आपका रिजल्ट आ रहा है नॉन रिटर्नेबल मोड पे। अब इसको हम एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, देन योर क्वेश्चन विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, यस सर, मेरा भी आ गया। आया? ठीक है, जस्ट वेरी गुड। Yes, अब इसको हम क्लियर कर लें। तो क्लियर करने के लिए जस्ट क्लियरिंग। ओके, नाउ अब ड्राई रन के लिए व्हाट वी हैव टू डू, ओके, फॉर ड्राई रन पर्पस वी हैव टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ n दैट इज 3। तो i की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? ओके, वन मिनट, हमें वैल्यू जो है वो 4 लेनी होगी। नो सॉरी, एक्चुअली 3 पे हमने ड्राई रन किया था तो हम 3 लेते हैं। तो n की वैल्यू 3, तो 3 + 1 4 तक हमारा लूप सेट होगा, लेकिन चलेगा कहां तक? 1 2 3। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? सम की वैल्यू होगी हमारी 0। सबसे पहले i में क्या आएगा? i में आएगा सबसे पहले 1 और हियर सम इज इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, i डबल एस्ट्रिक i, तो मतलब i की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 टू दी पावर 1। सो 1 टू दी पावर 1 का मतलब है कि 1 की पावर 1 1, तो 1 विल बी एडेड इन सम, तो 0 + 1। अब नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, तो i डबल एस्ट्रिक i मतलब 2 टू दी पावर 2 एस्ट्रिक 2 का मतलब होता है 2 टू दी पावर 2, that is equal to 4. That 4 will be added in sum. तो 1 + 4 यस सर। 5 हो जाएगा, 4 + 1 5। अब उसके बाद में Yes, sir. जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, अब i की वैल्यू कितनी होगी? 3, तो 3 डबल एस्ट्रिक 3 मतलब 3 3s are 9, 9 3s are 27. 27 will be added in sum, तो 27 + 5 is equal to 32। और जब i की वैल्यू 4 से 3 से एक्सीड करके 4 तक पहुंचेगी तो ये लूप आपका ब्रेक हो जाएगा और सम Break हो आपका जाएगा। हिंट होगा दैट इज 32। हियर आई जस्ट वांट टू, ओके, सो कैन यू प्लीज कंफर्म कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes. I want to convert this function into returnable. अभी ये नॉन रिटर्नेबल मोड पे एग्जीक्यूट हो रहा है, हम इसको रिटर्नेबल बनाना चाहते हैं। तो अगर आप एक Yes, sir. एक्सपर्ट प्रोग्रामर हैं तो ये सब चीजें आपके टिप पर हैं, आप फौरन बना सकते हैं। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, इस लाइन को हम कट कर देंगे, कर दिया कट। ओके, अब हम यहां प्रिंट नहीं करा रहे हैं, अब हमें यहां से रिजल्ट को रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए व्हाट वी हैव टू राइट? रिटर्न सम। अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब यहां से रिजल्ट जब रिटर्न हो रहा है तो इट शुड बी रिसीव्ड समवेयर, इट शुड बी रिसीव्ड समवेयर। तो रिसीव करने के लिए जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट वांट टू सेव ऑल दिस, कॉलिंग दैट। अब यहां पर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड दैट फंक्शन इज रिटर्निंग द रिजल्ट।
ओके तो अभी आपको रिजल्ट को रिसीव करने के लिए यू हैव टू डिफाइन अ वेरिएबल s2. अब आपको यहां लिखना पड़ेगा पावर फ्रीज comma s2. Understand? And I want to save all. आप चाहे रिटर्नेबल बनाए या नॉन रिटर्नेबल बनाए, दोनों के रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों के रिजल्ट बिल्कुल सेम होते हैं. ओके आप देख सकते हैं यहां पर, जस्ट अ मोमेंट, पहले एक बार इसको हम सेव ऑल कर लो. ओके नाउ calling demo 3 I have given. Now you can see that same output is coming, but internally the architecture is different. Earlier we were using the non-returnable function, but right now we are using the returnable function. Understand? Okay, fine. Immediately we have to switch to the another function. Okay, my 2 function is solved. Now what about the third? Is very easy. It's a factorial. Do you have the idea of the factorial? हम लोग कई क्वेश्चन फैक्टोरियल पे कर चुके हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कई लोग भूल चुके होंगे. क्यों ऋत्विक, याद है? सर भूलते हैं सर. अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? सर 1 + 2 + 3 + 4. यस, मुझे मालूम था कि तुम भूल गए हो. 1 × 2 × 3 हाँ सॉरी सर 1 × 2 सॉरी × 4 इज इक्वल, जो ये प्रोडक्ट आता है उसको फैक्टोरियल कहा जाता है. यस सर. ओके तो बस एक आइडिया दिया है क्योंकि हम इसे यूज करने जा रहे हैं. तो अब हम इस फंक्शन को डिजाइन करेंगे. तो इस फंक्शन के डिजाइन करने के लिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं. जस्ट आई एम कॉपिंग. ओके नाउ फंक्शन कहां क्रिएट होगा, यहां पे या यहां पे? यहां बनेगा. यही आपके फंक्शन का सेक्शन है. एंड डेफ fact sum, and fact sum is also accepting one parameter, that is n as a limit. अच्छा अब एक चीज आपको बता दें, यहां पर ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इस फंक्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे. अगर n की वैल्यू यूजर 4 देता है तो कैलकुलेशन कैसे होगा? कैलकुलेशन होगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और प्लस 5 फैक्टोरियल भी होगा. प्लस 5 फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा? नो सर. क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो आप सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक ही जाएंगे. अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये ऐसे कैलकुलेट होगा. 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल कितना होगा? 2, 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 6, 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 24. नाउ व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट? 24. 33. 24, 30, 33. यस और नो? यस सर. तो अगर आपके n की वैल्यू 4 होती है, अगर, तो आपका रिजल्ट 33 आना चाहिए इस सीरीज का. से यस और नो? यस सर. क्या क्लियर है? ये सेकंड लाइन क्लियर है? कैसे आ रही है ये वाली? सर नहीं क्लियर है. भाई 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है. यस सर. 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 × 2. 2. यस 3 का सर. फैक्टोरियल कितना होगा? 1 × 2 × 3. यस सर. 1 × 2 × 3 कितना होता है? 6. और 4 का 24. ने अभी निकाला ही है. तो इन sir. सबको अगर हम ऐड कर दें हाँ तो 33 आ जाएगा. हाँ सर आ जाएगा. ओके तो हमको अगर n की वैल्यू 4 मिलती है तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इन दिस मैनर यू हैव टू कैलकुलेट. ऑलराइट, Yes, sir. अब देखो इस प्रोग्राम को मैं बनाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना. 1 मिनट.
indentation was missing. Sum is equal to 0 for I in range 1 comma n plus 1. सेम ग्राउंड पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं. And sum is equal to sum. 1 minute. Here I want to take one more variable. F is equal to 1 for factorial purpose. 1 second. And F is equal to F into I. मैंने अभी आप लोगों से कहा कि एक कॉपी और पेपर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए. इस साइड में जो लिखा है येलो कलर से, इसे जल्दी अपनी कॉपी पे नोट कीजिए. For I is equal to I. Understand? ये फैक्टोरियल हो रहा है और सारे फैक्टोरियल का सम करना है सम में, लाइक दैट. एंड नाउ आई वांट टू रिटर्न. तो रिटर्न हम फंक्शन के अंदर करेंगे, लेकिन फॉर के बाहर आना पड़ेगा. अब हम आ जाते हैं कॉलिंग सीरीज में और यहां से हम इसको कॉल करेंगे. तो कॉल करने के लिए S3 इज इक्वल टू सीरीज डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट सम, एंड ब्रैकेट इज n num. फैक्टोरियल सम कॉमा S3. अगर n की वैल्यू 4 है तो हमारे फैक्टोरियल का सम कितना आना चाहिए? 30. 1 मिनट प्लीज. अब सब आंसर दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है, ठीक है, 1 मिनट, तो ये वाला रिजल्ट क्या आएगा? रिवीजन कर रहे हैं. ये रिजल्ट कितना आएगा? टोटल सम का रिजल्ट आएगा 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, 6 आएगा नहीं? Yes, अब sir. सब अपनी कॉपी पे लिखो, हम सब सारे रिजल्ट मैच करेंगे. तो अगर n की वैल्यू, सॉरी नम की वैल्यू 3 है, तो ये वाली सीरीज का सम कितना आएगा? 1 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 3 की पावर 3, कितना आएगा? 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 कितना? 31. 4. और 3 की पावर 3 कितना होगा? 27. 27. 4 31. तो 32. 32. इसका आंसर आएगा 32. Yes, sir. और इस सीरीज का आंसर कितना आएगा? Sir, 33. गुड. जब नम की वैल्यू हम 3 एज्यूम करेंगे तो ये 3 आंसर आने चाहिए. इनको फौरन अपनी सर कॉपी, एक बार जरा कोड दिखा दीजिए सीरीज वाला. कोड दिखा रहे हैं मेरे को. कोड. ठीक है, एक मिनट. पहले ये आंसर्स 3 देखो, इसे अपनी कॉपी पे कहीं पे लिख लो. आई वॉन्ट टू सेव. अब सेव ऑल करने के बाद आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूशन के लिए मैं इसको रेज नहीं कर रहा हूं. एग्जीक्यूशन के लिए आई हैव गिवन द लिमिट 3. Sir, it will come 9. 9 ना? yes. This is the problem. ये हमारा 9. अंडरस्टैंड? क्यों 9 होगा? बिकॉज हम यहीं तक तो जाएंगे, इतना. यहां देखो, Yes, sir. मार्कर देखो मेरा. 6 + 2 8 + 1 9, तो इसका आंसर 9 ही आएगा. 33 तब आता जब हम n की वैल्यू को 4 लेते हैं. ओके, सर तो एक बार और एग्जीक्यूट कर लेते हैं. ये सब तो हमारे अपने हैंड में है. हमको कोड दे दीजिए, हम कोड तो पूरा कर लें अपना. अब आ गया 33. बस अकॉर्डिंगली बाकी के आंसर भी इंक्रीज हो गए. ओके, नाउ दिस इज द कोड और आप आराम से इसको लिखिए. और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क. जस्ट अ मोमेंट प्लीज. तो हम रिकॉर्डिंग सेव कर लें. 1 सेकंड प्लीज. One second. Okay. Now it's fine. You just write down the code. ये calling है and this is the function. अपनी वाला copy दिखना है. कीजिए. और साइड में ड्राई रन भी है.
इस ड्राई रन को भी आप, हमने बहुत लेंथी क्लास नहीं ली है, जस्ट आई हैव टेकन अ 40 मिनट क्लास, 45 मिनट क्लास, 45 मिनट की क्लास अभी हुई है, बस 45 और 50 मिनट की क्लास अभी हुई है। तो नॉर्मली हम 1 आवर्स की क्लास तो लेते ही हैं। यस सर। डन? हाँ सर, यस सर। किसको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। आराम से देखकर बताओ। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली आई कैन सॉल्व, और मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। यस सर, मेरा आंसर आ गया। चेक इट प्लीज। मैं बाकी के पार्टिसिपेंट से पूछ रहा हूं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताएं। हम बहुत फास्ट मैनर में नहीं करना चाह रहे हैं, आराम से देख लीजिए। इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। एनी प्रॉब्लम? No, sir. Facts. This is facts. पावर फैक्ट। पावर फैक्ट में आपको पावर भी करना है और फैक्टोरियल भी करना है, दोनों करना है। ऊपर पावर हो रहा है, नीचे फैक्टोरियल हो रहा है, मतलब इन दोनों फंक्शन की फंक्शनैलिटीज को हमने इसमें इनबिल्ट कर दिया, कंबाइंड कर दिया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें पावर और फैक्टोरियल दोनों काम करने हैं। तो अगर आपको थर्ड और फोर्थ समझ में आ गया है तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे। तो जस्ट प्लीज थिंक अबाउट इट एंड प्लीज लेट मी नो कि आपको थर्ड और फोर्थ समझ में आ गया है या नहीं। आराम से। Yes, sir. आ गया समझ में। Yes, यस sir. सर, आ गया है। तो ठीक है, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं ये। अब Yes, देखो, sir. इसे कॉपी कर लिया हमने, बस 5 मिनट और, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो अब स्क्रीन को हम क्लियर कर रहे हैं। ओके, हियर डेफ। इसमें अभी हम एक बहुत नई चीज देखेंगे, एंड एन। अब दो चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, सम और एफ इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड? बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। और आई इन रेंज, ये सब तो सिमिलर ही रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। फैक्टोरियल तो हमें चाहिए है क्योंकि वो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है। कहाँ यूज हो रहा है? डिनोमिनेटर में यूज हो रहा है, ऊपर पावर यूज हो रहा है। तो पावर ऊपर यूज हो रहा है, फैक्टोरियल नीचे यूज हो रहा है, तो f इज इक्वल टू f इनटू आई। अब देखो, कैन वी राइट लाइक दैट? आराम से देखकर बताओ। एंड डिवाइडेड बाय f। डन। ये हमने पावर कैलकुलेशन किया, बेस की पावर एक्सपोनेंट, मतलब सेम बेस सेम पावर, और ये हमारा फैक्टोरियल है। तो पावर कैलकुलेशन हमारा रहेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रहेगा हमारा फैक्टोरियल। डू यू अंडरस्टैंड? और इस पूरे का सम हम रिटर्न कर देंगे यहां से। अंडरस्टैंड? अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके टेस्ट कर लेते हैं, सो इट विल बी मोर बेटर। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अगर हम n की वैल्यू को 3 लेते हैं तो हमारी सीरीज का कैलकुलेशन जाएगा इस तरह से, 1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 अपॉन व्हाट? 2 factorial. 3 की पावर 3 अपॉन व्हाट? 3 factorial. अब सेकेंड लेवल पर हमें वैल्यूज डिप्यूट करनी है, तो 1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 इज ऑल्सो 1, प्लस 2 की पावर 2 4 एंड 2 फैक्टोरियल कितना होगा? 2 होगा, प्लस 3 की पावर 3 कितना होगा? 27. 27 अपॉन 3 फैक्टोरियल मीन्स 6. ओके। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
एक बार फिर से समझाइए, समझ नहीं आया। फैक्टोरियल को खाली रिजॉल्व किया है। जो फैक्टोरियल्स थे 2 की पावर 2 कितना होता है? ऐसा उसको समझा, ये 21 जो है इसका नहीं, उसका समझ नहीं आया 21। वेयर इज 21? सर 2 बाई टू द पावर 2 बाई 21। 21 नहीं है, 2 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का साइन अच्छा, होता है ठीक है। एक्सक्लेमेशन यार। ऐसे इसमें डॉट का लगा है। कॉमन सेंस यूज करना माय डियर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ फैक्टोरियल साइन, ओके। 27 डिवाइडेड बाय 6, 27 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा? कैन यू प्लीज कैलकुलेट? मोबाइल में कैलकुलेट करो, ठीक है। 27, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, 1 सेकेंड। यहां पर हम थोड़ा सा 4.5. क्योंकि फ्लोर डिवीजन है न, सॉरी एक्चुअली ये डायरेक्ट डिवीजन 27/3 ना। 9 27 बाई कितना था? 27 बाई 6, 4.5। तो अब देखो 1 + 2 + 4.5 हाउ मच? 7.5 आंसर आना चाहिए। यस और नो? से यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये कितना आया हमारा? ये हमारा आया 4.5। हम एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं बस। 27/6 इज 4.5। 27/6 इज 4.5। 1 मिनट, 4.5। और अब अगर हम देखें तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 7 पॉइंट हाउ मच? 0.5. 7.5। 7.5, यस 7.5। तो आंसर हमारा आएगा 7.5। कब आएगा? व्हेन? जब हम n की वैल्यू 3 अज्यूम करते हैं। से यस और नो? अगर n की वैल्यू हमने 3 अज्यूम करी तो हमारा आंसर कितना आएगा? 75। 7.5। हाँ 7.5। इसको नोट करो कॉपी पे जल्दी से। इतना सेक्शन नोट Yes, करो sir. सब लोग, Yes, sir. इतना, क्योंकि हम बाद में पूछेंगे तुम लोगों से। ओके चलो अब इसको सेव करते हैं। लिख लिया। सेव कर रहे हैं, सेव ऑल। अब सेव ऑल करने के बाद हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट करने से पहले इस फंक्शन को कॉल भी तो करना होगा। तो कॉलिंग सीरीज में जाते हैं और S4 इज इक्वल टू सीरीज डॉट, फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम क्या है? Power fact. सॉरी, फैक्टसम, Power. No, sir. Power fact. पावर फैक्ट ना। आवर फैक्ट। Power fact. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ओके, और क्या पास कर देंगे? नम। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिंट पावर फैक्टोरियल सीरीज कॉमा हाउ मच? S4 डन। और याद रखना कि हमें n की वैल्यू 4.3 लेना है, क्योंकि ऊपर वाले हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, हमें लास्ट वाला ही टेस्ट करना है मेन। सेव ऑल। कैन यू प्लीज कंफर्म? यस सर, यस सर। Yes, मेरा sir. चलिए, हो गया, मेरा भी आंसर आ गया 7.5। इससे Yes, ज्यादा हाई एक्यूरेसी हम नहीं दे सकते। ईच एंड एवरीथिंग यू आर चेकिंग एंड मैचिंग। 7.5 आने का मतलब यह है कि जो फंक्शन आपने डिजाइन किया है और जो लूपिंग आपने सेट की है वो सब कुछ, सारा कैलकुलेशन, सारी लूपिंग, सारा फैक्टोरियल, सब कुछ आपका परफेक्ट है। इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। एंड जस्ट 1 मिनट प्लीज। ओके, so I will discuss the Fibonacci series in the next class. Actually Fibonacci series होती क्या है? बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो आप एक बड़ी नई चीज अभी एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है। So we can discuss this in the next class, no problem. And whatever you say. Okay? So just a moment please. Here हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय
फाइबोनेकी सीरीज? किसी को आइडिया है फाइबोनेकी सीरीज क्या होती है? यस सर, मुझे पता है। ओके ओके, फाइबोनेकी सीरीज का मतलब ये होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं उसको फिबोनाची सीरीज कहते हैं। फिबोनाची सीरीज 0 1 1 2 3 5 8 तो उसका कोड एक बार फिर से करवा दीजिए। 13 21 34। दिस इज अ फाइबोनेकी सीरीज। इसमें फर्स्ट और 2 नंबर ऐड होते हैं तो तीसरा नंबर जनरेट होता है। जब सेकंड और थर्ड ऐड होंगे तो फोर्थ नंबर जनरेट होगा। सिमिलरली ये सीरीज आगे बढ़ेगी बाय द एडिशन ऑफ द प्रीवियस लास्ट 2 नंबर। यस और नो? यस सर। यही होती है ना फाइबो? यस सर। इसको फाइबोनेकी सीरीज कहते हैं। इसका प्रोग्राम भी मैं आपको बना देता हूं, ठीक है? इफ यू हैव द टाइम कर लें इसको कंप्लीट। यस सर, कर लेते हैं। Please, I'm asking to all of you, if you have any problem, we can just a moment, please.